خطے میں ایک غیر معمولی پیشرفت سامنے آئی ہے۔ سعودی عرب نے بحیرہ عرب میں اپنی بحریات تعینات کرنے کے بعد ایک اور بڑا سخت قدم اٹھاتے ہوئے ابوظہبی سے اپنا قونصل جنرل کو واپس بلا لیا ہے۔ یہ قدم سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات کے درمیان کشیدگی کی ایک اور بڑی واضح علامت کے طور پر دیکھا جا رہا ہے۔ دوسری جانب سعودی عربیہ کی طرف سے یمن کی حکومت کی درخواست پر جنوبی یمن میں آپس میں لڑنے والے جو تمام متحارب گروپس تھے ان کا ایک اجلاس ریاض میں طلب کیا، جس میں اس بات کی پیشکش کی گئی تمام متحارب گروپس کو کہ وہ ریاض میں بیٹھ کر اس معاملے کے پرامن حل کے لیے اپنے یہ جو تجاویز ہیں اس کو شیئر کریں تاکہ یمن کے اندر کشیدگی کا خاتمہ ہو سکے۔ اور جنوبی یمن کی سب سے بڑی اور متحارب قوت جس کو سدرن ٹرانزیشنل کونسل کہا جاتا ہے یعنی STC، اور اس گروپ کو متحدہ عرب امارات کی حمایت حاصل ہے، اس نے جناب سعودی عرب کی جانب سے ریاض میں بلائے جانے والے اس اجلاس کو نہ صرف مسترد کر دیا بلکہ STC کی طرف سے اس ساری صورتحال میں ایک اور دھماکہ خیز اعلان بھی سامنے آیا ہے، اور STC نے جناب اس پیشکش کو مسترد کرتے ہوئے جنوبی یمن کی علیحدگی کے لیے ایک ریفرینڈم کرانے کا اعلان کر دیا ہے، اور ساتھ ہی انہوں نے مجوزہ نئے ملک کا نام جنوبی عربیہ یعنی ساؤتھ عربیہ رکھنے کا فیصلہ کیا ہے، اور جس نے اس تنازع کو اور بھی زیادہ گمبھیر کر دیا ہے۔ STC کی طرف سے ریفرینڈم اور یمن سے علیحدگی کے اعلان کے بعد سعودی عربیہ کی طرف سے اور سعودی عربیہ کے ساتھ جو دیگر اتحادی ممالک ہیں انہوں نے یہ جو المیرا اور حضرموت اس کے میں جو STC کے ٹھکانے ہیں ان کے اوپر شدید ترین حملے کیے ہیں، فضائی حملوں کی خبر سامنے آئی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ جو زمینی فوج ہے وہ بھی حضرموت اور المیرا کی جانب بڑھتی ہوئی نظر آ رہی ہے، اور کئی اطلاعات جو ہیں وہ اس طرح کی بھی سامنے آئی ہیں کہ حضرموت کے دو اہم ترین مقامات پر سعودی عرب کی زیر سربراہی جو اتحادی گروپس ہیں انہوں نے یہ جو STC ہے اس کو پیچھے دھکیل دیا ہے، جس کے بعد جو لڑائی ہے اس میں بھی اضافہ ہوا ہے، اور سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات کے درمیان کشیدگی میں بھی اضافہ ہوا ہے۔ اس ساری صورتحال پر بات کرتے ہیں جناب، اور یہ دیکھتے ہیں کہ یہ معاملہ اب کس سمت میں آگے بڑھتا ہوا نظر آ رہا ہے، کیونکہ اس عمل کے یہ جو پرامن حل ہے اس کے امکانات تو تقریباً صفر ہو چکے ہیں، اور شاید یہی وجہ ہے کہ پاکستان کے نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ نے اس صورتحال پر سعودی ہم منصب کے ساتھ یعنی شہزادہ فیصل بن فرحان کے ساتھ ٹیلی فون پر گفتگو کی ہے، اور اس گفتگو میں یمن کشیدگی کے تناظر میں خطے کی تازہ ترین صورتحال پر تبادلہ خیال کرتے ہوئے امن کے قیام کے لیے سفارتکاری پر زور دیا گیا ہے۔ دفتر خارجہ کی طرف سے جاری کیے جانے والے بیان میں بتایا گیا ہے کہ وزیر خارجہ اسحاق ڈار نے سعودی وزیر خارجہ سے بات چیت میں اس بات پر زور دیا کہ خطے سے تعلق رکھنے والے تمام فریق کسی بھی اشتعال انگیز اقدام سے گریز کریں اور علاقائی امن اور استحکام کی خاطر مسائل کو بات چیت اور سفارتکاری کے ذریعے حل کیا جائے۔ پاکستان اور سعودی وزیر خارجہ کی یہ گفتگو ایک ایسے وقت میں ہوئی ہے جب یمن میں جاری صورتحال کے تناظر میں حالیہ دنوں میں پاکستان نے سعودی عرب سے مکمل یکجہتی کا اظہار کرتے ہوئے مملکت کی سلامتی کے لیے اپنا جو غیر متزلزل عزم ہے اس کا اعادہ کیا تھا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان نے ایک جانب سعودی عربیہ سے گفتگو کرتے ہوئے اس معاملے کے سفارتی حل کے اوپر زور دیا، سعودی عرب نے اس مسئلے کا سیاسی حل نکالنے کے لیے متحارب گروپوں کو گفتگو کی پیشکش کی، جس کے جواب میں متحارب گروپس کی طرف سے جناب علیحدگی کا اعلان کرتے ہوئے ریفرینڈم کرانے کا اعلان کر دیا گیا، جس نے اس ساری صورتحال کو ایک اگر میں یہ کہوں کہ اس کو چوک کر کے رکھ دیا ہے تو یہ کہنا بھی کچھ زیادہ غلط نہیں ہوگا۔ اگر میں گزشتہ 24 گھنٹے کی بات کروں جس میں یہ تمام پیش رفتیں سامنے آئی ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ سعودی عرب کی طرف سے فریش اٹیکس بھی سامنے آئے ہیں، تو اس کی تفصیلات کے مطابق حضرموت صوبے میں شدید جھڑپیں ہوئی ہیں۔ سعودی حمایت یافتہ نیشنل شیلڈ فورسز نے STC کے کنٹرول والے علاقوں میں فوجی اڈوں کو واپس لینے کی کوشش کی ہے، جس پر STC کی طرف سے شدید رد عمل کا اظہار کیا گیا اور بھرپور طاقت کا استعمال کیا گیا۔ سعودی فضائیہ نے
STC पोजीशंस पर फ़ज़ाई हमले भी किए हैं, जिसके चंद मनाज़र आप इस वक्त अपनी स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। उसके साथ सऊदी अरेबिया का ये जो हमायत याफ्ता ग्रुप है, इसकी तरफ से STC के कई जंगजुओं को हलाक करने का दावा भी किया गया है। STC की तरफ से भी सऊदी अरब के हमायत याफ्ता ग्रुप में जो बड़े पैमाने पर हलाकतों का दावा किया गया है, यानी दोनों ग्रुप्स ने एक दूसरे के ऊपर जो जानी नुकसान है उसके दावे किए हैं, लेकिन दुरुस्त तादाद अभी तक वाज़ेह नहीं हो सकी। ये झड़पें अभी तक जारी हैं और इनमें शिद्दत आती हुई नज़र आ रही है। इसके साथ साथ इम्पॉर्टेंट बात यह है कि यमन के तनाज़े के माहर और तज्ज़ियाकार हशाम अल अमीसी ने एक पोस्ट शेयर की है, जिसमें उन्होंने इस बात का जिक्र किया है कि सदर्न ट्रांजिशन काउंसिल को मुत्तहिदा अरब अमारात की रवायती फ़ज़ाई मदद के बगैर बहुत नुकसान हो रहा है, क्योंकि सऊदी जेट्स अब इसके कमांडर्स और कुमक को हज़र मौत में निशाना बना रहे हैं। STC के काफ़िले पर हमले के बाद की वीडियोस, जहां सऊदी अरब का पैगाम वाज़ेह है कि अब कोई रियायत नहीं होगी। ये जिस वीडियो का मैं आपके साथ जिक्र कर रहा हूं, इस पोस्ट के साथ मुंसलिक है। तकरीबन 23 सेकंड की ये वीडियो है, रात के वक्त ये फिल्माई गई है और इसमें एक काफिले जो कि मुमकिना तौर पर ट्रक्स या गाड़ियों पर मुश्तमिल था, पर हमले के बाद तबाही नज़र आ रही है। आग के शोले बुलंद हो रहे हैं और ये जो सूरत हाल है, इसमें कुछ लोग भागते हुए भी नज़र आ रहे हैं और कुछ आग बुझाने की कोशिश भी कर रहे हैं। ये मंजर एक सड़क का है जहां तबाही की शिद्दत से लगता है कि ये फ़ज़ाई हमले का ही नतीजा है। इसके साथ साथ जिस तरह मैंने आपसे गुजारिश की है कि ये जो रेफरेंडम का ऐलान सामने आया, वो सऊदी अरब की तरफ से इसी हमले के बाद सामने आया है, जहां पर मुत्तहिदा अरब अमारात के हमायत याफ्ता सदर्न ट्रांजिशनल काउंसिल ने जनूबी यमन की अलहदगी के लिए 2 जनवरी 2026 को एक नया ऐलान जारी किया है, जिसमें जनूबी यमन के लिए स्टेट ऑफ साउथ अरेबिया का लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया है और कहा गया है कि STC ने स्टेट ऑफ साउथ अरेबिया नाम की एक अलग रियासत कायम करने का फैसला किया है, जो कि साबिक पीपल्स डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ यमन के सरहदों पर मुश्तमिल होगी। उसके साथ साथ एक 2 साला अबूरी मुद्दत यानी ट्रांजिशनल फेज़ का आगाज़ करने का ऐलान किया गया है, जिसके इख्तिताम पर यानी 2028 में जनूबी यमन के लोगों के लिए हक़ के खुद इरादियत यानी सेल्फ डिटर्मिनेशन का रेफरेंडम मुनक्कद किया जाएगा। यह रेफरेंडम बुनियादी तौर पर आज़ादी यानी अलहदगी के लिए होगा। यह ऐलान STC के सदर एदरोस अल ज़ुबैरी ने टेलीविज़न खिताब में किया और उन्होंने शुमाल और जनूब के दरमियान मुज़ाकरात की अपील भी की। ताहम उन्होंने खबरदार किया कि अगर मुज़ाकरात ना हुए या STC पर हमले जारी हुए तो जनूबी यमन का यमन से आज़ादी का ऐलान फौरी तौर पर भी किया जा सकता है। ये खबर मुतअद्दिद जो बैनुल अक़वामी मीडिया आउटलेट्स हैं उन्होंने भी रिपोर्ट की है, जिसमें रॉयटर्स और दीगर मीडिया आउटलेट्स शामिल हैं। अल जज़ीरा है, उसके साथ साथ AP न्यूज़ है, BBC है, गार्डियन है, मिडल ईस्ट आई है। इन तमाम ने इस खबर को शेयर किया है, जिसके बाद सऊदी अरब और STC के दरमियान जो झड़पें हैं उसमें तेज़ी आ गई है। बताया ये जा रहा है कि सऊदी अरब की तरफ से ये जो नई स्टेट जनूबी यमन में बनाने का ऐलान किया गया है, सऊदी अरब की तरफ से इसको यकसर मुस्तरद कर दिया गया है और कहा गया है कि सऊदी अरब अपनी सरहद से मुत्तसिल किसी एक ऐसी रियासत के क़याम का किसी भी सूरत हामी नहीं हो सकता जिससे उसकी सालमियत के ऊपर भी ख़तरात पैदा हों और यमन की जो सलामती है वो भी मुतासर हो। और सऊदी अरब ने वाज़े तौर पर इस बात का इजहार किया है कि वो सदर्न ट्रांजिशन काउंसिल के ख़िलाफ़ अपनी जो कार्रवाइयाँ हैं वो जारी रखेगा। और इसी पर्सपेक्टिव में सऊदी बहरिया को ये जो यमन से मुत्तसिल समंदर है वहाँ पर तैनात कर दिया गया है। और ये खबर भी सामने आ रही है कि तुर्की की तरफ से भी जो जंगी जहाज़ हैं, बहरी जंगी जहाज़, उनको भी जो है हरकत में लाकर ऐसी पोजीशंस पर तैनात
तैनात किया जा रहा है, जिसके नतीजे में यमन के ख़ास तौर पर ये जो सदर्न ट्रांजिशनल काउंसिल के बागी हैं उन तक पहुंचने वाली कुमक को रोका जा सके, क्योंकि अगर उनकी कुमक रुक जाएगी, अगर उनको मुत्तहिदा अरब अमारात से असला गोला बारूद नहीं मिलेगा तो फिर वो अपनी कार्रवाइयाँ जारी रखने की पोजीशन में नहीं होंगे। मौजूदा हालात के अंदर यमन में जो कशीदगी है उसमें इजाफे का इम्कान नज़र आ रहा है और इसके नतीजे में सऊदी अरेबिया और मुत्तहिदा अरब अमारात के दरमियान जो ताल्लुकात हैं वो अब और कशीदा होते चले जा रहे हैं। अबू धाबी से जिस कौंसल जनरल को वापस बुलाया गया है वो बुनियादी तौर पर इसी मकसद की तरफ इशारा है कि सऊदी अरेबिया मुत्तहिदा अरब अमारात को ये पैगाम देना चाहता है कि वो STC से वाज़े अंदाज में इजहार बुरात करे, इजहार लाताल्लुकी करे और उन तक जो मदली मदद है या जो उनको सपोर्ट है हथियारों की शक्ल में उसको रोके। मुत्तहिदा अरब अमारात का इस सूरत हाल में एक नया बयान सामने आया है जिसमें मुत्तहिदा अरब अमारात की तरफ से इस बात का ऐलान किया गया है कि यमन में मुत्तहिदा अरब अमारात की तरफ से जारी तमाम ऑपरेशंस को बंद कर दिया गया है। मुत्तहिदा अरब अमारात के यमन में तैनात तमाम फौजियों को बाहिफाजत यमन से निकाल कर मुत्तहिदा अरब अमारात मुंतकिल कर दिया गया है। और उन्होंने इस बात का भी जिक्र किया है कि जनाब जितना अरसा हम यमन में रहे हमने अपने मैंडेट के मुताबिक जो अपनी कार्रवाइयाँ हैं वो जारी रखी। चंद इतलात ऐसी भी सामने आ रही हैं कि सऊदी अरब ने सख्त पैगाम मुत्तहिदा अरब अमारात को भिजवाया है और सऊदी जो शख्सियात मुत्तहिदा अरब अमारात में मुकीम हैं उनको फौरी तौर पर ख़ास तौर पर जो बिजनेसमैन हैं उनसे कहा गया है कि वो अपना सरमाया निकाल कर वापस सऊदी अरब मुंतकिल हो जाएं। और ये जो कौंसल जनरल को वापस बुलाया गया है इब्तदाई तौर पर उसको एक जो सऊदी अरब का मौक़िफ़ है वो उसको देकर वापस भिजवाया जाएगा और अगर मुत्तहिदा अरब अमारात ने सऊदी अरब के जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं उनको एड्रेस ना किया तो फिर ये जो सफारती अमला है इसको मुकम्मल तौर पर वापस बुलाकर मुत्तहिदा अरब अमारात के साथ ये जो ताल्लुकात हैं इसको जो है ना कम से कम सतह पर लाने का फैसला सामने आ सकता है, जो कि एक और बड़ा ही संगीन इकदाम होगा ख़ास तौर पर मशरिक़ वुस्ता में अमन के तनाजुर में। अब इस सारी सूरत हाल में यकीनी तौर पर पाकिस्तान के लिए भी कुछ पॉइंट ऑफ कंसर्न्स हैं। ये वजह है कि पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा की तरफ से सऊदी वज़ीर ख़ारजा के साथ टेलीफोनिक रब्ता किया गया और उनको इस बात से आगाह किया गया कि अगरचे पाकिस्तान हर तरह की सपोर्ट सऊदी अरब को एक्सटेंड कर रहा है लेकिन इसके बावजूद पाकिस्तान की ये ख्वाहिश है कि मुत्तहिदा अरब अमारात और सऊदी अरब एक दूसरे के आमने सामने ना आए, क्योंकि आमने सामने आने का मतलब ये होगा कि फिर पाकिस्तान को चूज़ वन वाली जो ऑप्शन है वो अडॉप्ट करना पड़ेगी और मौजूदा हालात में पाकिस्तान के पास शायद ये वाली अभी सहूलत मुयसर नहीं है। इसके साथ साथ ये ख़तरात भी मौजूद हैं कि STC की तरफ से सऊदी अरब के ऊपर बराह रास्त रॉकेट या मिसाइल फायर किए जाएं, क्योंकि उनके पास भी इस तरह का साजो सामान मौजूद है और अगर सऊदी अरब पर STC की तरफ से बराह रास्त अटैक होता है तो फिर ये जो एक मुआहदा म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान है उसमें फिर पाकिस्तान को इस मामले में शामिल होना पड़ेगा और पाकिस्तान ये चाहता है कि वो इस सारी सूरत हाल जो है ना उससे अपना दामन बचा के रखे। लेकिन जिस तरह ये हालात आगे बढ़ रहे हैं ख़ास तौर पर आज़ादी के ऐलान और रेफरेंडम के ऐलान और कशीदगी में इजाफे से मुझे ऐसे लगता है कि शायद पाकिस्तान के पास आने वाले वक्त में ये ऑप्शन शायद बाकी ना रहे कि वो चूज़ वन वाला जो ऑप्शन है शायद ये बाकी ना रहे। तो देखना ये है कि अब ये जो कशीदगी है इसका अंजाम क्या होगा, क्योंकि सऊदी अरब इस बगावत को जो कि STC की तरफ से की जा रही है को कुचलने के लिए पुरअज़्म भी है और वो इस बात को इस्टेब्लिश भी करना चाहता है कि मशरिक़ वुस्ता में सऊदी अरब एक जिसे हम कह सकते हैं माशी ताकत के साथ साथ एक फ़ौजी ताकत भी है और उसका इस सारी सूरत हाल में अपनी फ़ौजी ताकत का इजहार करना इसराइल और जो बाकी लोग हैं उनके लिए भी एक बड़ा सख्त पैगाम होगा और शायद सऊदी अरेबिया इस सारी सूरत हाल में ये पैगाम देने पर ख़ुद को मजबूर समझ रहा है। अपने आगे ज़रूर इजहार कीजिएगा। आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।